Good morning, everyone. Today we are going to study the second chapter of Civics of Class 8, Features of our Constitution. In the previous chapter, we learned about the need for Constitution and the role it plays in the governance of our country. In this chapter, we will examine the key idea of principle enshrined in the Constitution of India. The preamble to the Constitution. The preamble is an introduction to the Constitution. It outlines the objective of the Constitution and the vision guiding it. The nature of the state. The nature of the state or the kind of government India will have is defined by the following word used in the preamble: sovereign, socialist, secular, democratic, and republic. The objectives of the state. The state assures the citizen of India justice, liberty, equality, and fraternity. Fundamental rights. Our constitution guarantees every citizen of India certain rights that ensure a life of dignity, peace and harmony. Such rights are known as fundamental rights. The fundamental rights are outlined outlined in Part 3 of the Constitution. They are safeguarded by the judiciary. The Constitution outlines 7 fundamental rights: right to freedom, freedom of speech and expression, to form association and union, move freely within territory of India, right to equality. The right to equality guarantee every citizen of India equality before the law and equal protection of the law. Right against exploitation. The right against exploitation is defined in article of the Constitution. This fundamental right forbids human trafficking and forced labor. Right to freedom of religion. All citizens of India shall have the right to freely profess, practice and propagate any religion. Right to culture and educational right. Right to constitutional remedies. Right to education. The right to education aims to provide free and compulsory education to citizens of India. Directive principle of the state policy. The directive principle of state policy are in Part 4 of our Constitution. They are guidelines which are to be kept in mind by the government while framing law and policies. These direct the state to frame policies that ensure welfare, justice, and develop in all social, economic, and political areas. Fundamental duties. Along with fundamental right, our Constitution also laid down certain duties that every Indian citizen is expected to fulfill. These duties serve to protect the nation and uphold its unity. The following are some duties the citizen of India: to respect the idea of the Constitution, the national anthem and the national flag, to defend the country and render national service whenever called upon to do, to respect sovereignty, unity and integrity of the country, to protect the natural environment, forest, river, wildlife, to safeguard public property. दूसरा चैप्टर फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, ये कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सरकार के कार्यों में देश में, और इस चैप्टर में हम ये परीक्षण करने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे विचार क्या है, इसके सिद्धांत क्या हैं जिसके सहारे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान जो है भारत में लागू हुआ. द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन.
प्रियम्बल हमारे भारत के संविधान का एक परिचायक स्वरूप है। यह हमें उसके गोल्स, लक्ष्य और उसके उद्देश्यों को बताता है, उसके स्वरूप को दिखाता है और हमें गाइड करता है कि हमारा भारतीय संविधान किस प्रकार है। द नेचर ऑफ द स्टेट, राज्य का स्वरूप। द नेचर ऑफ द स्टेट और द काइंड ऑफ गवर्नमेंट, जो भारत राष्ट्र या राज्य का जो स्वरूप है या सरकार का जो प्रकार भारत में जो है वो डिफाइन किया गया है इस अधिनियम के तहत कि प्रियम्बल में हमें बताया गया है कि हम सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र बनेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट, राज्य का यह उद्देश्य होता है कि सभी नागरिक भारत के उनको न्याय, स्वाधीनता, समानता और उनका स्थायित्व और उनकी पहचान जो है एक समान मानी जाए। फंडामेंटल राइट्स, हमारा संविधान जो है वो निश्चित करता है कि हर एक भारतीय नागरिक को कुछ अधिकार प्रदान करता है जो कि उनकी ज़िंदगी के अस्तित्व को बढ़ाती है, साथ ही साथ वो शांतिपूर्वक इस देश में रह सकें उन अधिकारों के सहारे। कुछ अधिकार, इन अधिकारों को जो है हम लोग मौलिक अधिकार के नाम से भी जानते हैं। इसको संविधान के भाग 3 में दर्ज किया गया है, जो कि इसको सेफ गार्ड किया है कॉन्स्टिट्यूशन के जुडिशरी के तरफ से। इसके कुछ महत्वपूर्ण संविधान के द्वारा प्रदान किए गए कुछ महत्वपूर्ण अधिकार निम्न है, जिसमें पहला है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत हम देख सकते हैं बोलने की आज़ादी, भावनाओं को उजागर करने की आज़ादी, कोई भी संगठन स्थापित करने, संघ बनाने की आज़ादी, यहाँ तक कि अपने देश के अंतर्गत कहीं भी घूमने की आज़ादी हमें इससे मिलती है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी हमें यह निश्चित करती है कि भारत के सभी नागरिक एक समान हैं कानून के समक्ष और कानून तक पहुंच सभी का एक समान ही है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसके अंतर्गत सरकार या संविधान जो है वो निश्चित करती है कि सभी लोग जो है उनका अधिकार है कि वो शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। जैसे कि अगर किसी के द्वारा कहीं पे बाल मजदूरी या जबरन उनसे मजदूरी करवाई जा रही है तो उसके खिलाफ में वो आवाज़ उठा सकते हैं, ये उनका अधिकार है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके अंतर्गत संविधान के द्वारा यह प्रदान किया गया है अधिकार के रूप में कि कोई भी व्यक्ति, भारतीय नागरिक जो हो, वो अपने धर्म की पूजा और उसके रीति रिवाजों को मान सकता है, उस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। उसके साथ साथ हमें सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार प्राप्त हैं, साथ ही साथ संवैधानिक सुधारों का अधिकार भी हमारे पास प्राप्त हैं और यहाँ तक कि सबसे बड़ा अधिकार जो मानव के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है शिक्षा का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत पूरे देश के जो नागरिक हैं सभी को मुफ्त आधारभूत शिक्षा प्रदान करना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, निर्देशिका राज्य सूची की। यह निर्देशिका राज्य सूची को यह भाग 4 में संविधान में दर्ज की गई है। इसके दिशा निर्देश के अनुसार राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, वो अपने दिमाग में यह बात रखती है कि कानून बनाते समय, नीतियों को बनाते समय उसकी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। यह डायरेक्ट करती हैं राज्य को कि किस नीति के तहत वो कानून बनाए जो कि न्यायपूर्वक हो, विकास के लिए सहायक हो, सामाजिक आर्थिक विकास और राजनीतिक क्षेत्र में उसकी उपलब्धि बनी रहे। फंडामेंटल ड्यूटीज़, संविधान की तरफ से जितने हमें अधिकार दिए गए हैं उसी के साथ साथ हमें कुछ मौलिक कर्तव्य भी बताए गए हैं जो कि हम सभी भारतीय नागरिकों को पूरी करनी होती हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण जो मौलिक कर्तव्य हैं वो दिए गए हैं, जैसे कि आदर सम्मान देना संविधान को और राष्ट्रीय गान को, साथ ही साथ राष्ट्रीय झंडे को भी सम्मान प्रदान करना, साथ ही साथ अपने देश की एकता, अखंडता और उसके
एकता अखंडता को बनाए रखना और उसको घटित या उसको छीन भिन होने से बचाना। साथ साथ हमारे यहाँ पे जो भारतीय जितने भी पर्यावरण है, जंगल है, रिवर है, वन्य जीव हैं, उन सभी को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा प्रदान करना, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। किसी सार्वजनिक स्थल पे उसको नुकसान ना पहुँचाना या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाना, ये भी हमारा कर्तव्य है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण कि हमें जो सरकार की तरफ से दी गई जो सुविधाएं हैं, जैसे रेल, सरकारी बसें, सरकारी पार्क, निगम पार्क, ये सारी जगहों पे उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी सुरक्षा करें।